Assalamu alaikum. This is me, Dr. Faiza, to discuss with you the functions of small intestine from your gastrointestinal physiology module. The major learning outcome we are going to discuss today are the overall overview of the functions of the small intestine, what type of functions are there, and we are going to also discuss the abnormalities in the functioning of the small intestine to a bit, although you will find separate lectures for each of the individual function of the small intestine. So major functions of small intestine, as you already know, include its motility function, secretory function, digestive and absorption function. You have a separate lecture. You can find the video recording on the motility of the small intestine. There is a separate lecture on digestion and absorption of the small intestine and a separate lecture on the secretory activity of the small intestine. In this lecture, we are going to have just a quick overview of the physiology of the small intestine, that how it helps in these functions and somewhat of the clinical correlations. So starting from the secretory activity of the small intestine, the secretion of the small intestine in cumulation is called as succus entericus. And from where does this secretion come? From three areas of the small intestine: Brunner's glands in the duodenum, mucus and goblet cells on the surface of villi, क्रेप्स ऑफ लिबर्कन. ये हैं क्या? वन बाय वन इनको अभी हम कमिंग अप स्लाइड्स के अंदर देखते हैं. ये जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशन है, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ 1.5 liters in a day, and this is purely alkaline in nature with its pH from 7.5 to 8. It has a large amount of mucus and water and salts, बट नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जैसे पेंक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, बिलियरी जूस से आते हैं, स्टमक से आते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशंस मेजरली इट्स एल्कलाइन, इट्स सॉल्टी, इट्स फ्लूइड, इट्स म्यूकस, बट नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स. स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उसके ब्रश बॉर्डर में ज़रूर मौजूद होते हैं, बट नॉट अ पार्ट ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. Stimulation of secretion of small intestine is as seen in other parts of the gut by local stimulation by the chyme, any tactile or irritating stimulus, parasympathetic stimulation, hormonal stimulation by secretin. Sympathetic stimulation, in contrast, inhibits the secretory activity of the small intestine. So again, a food for thought for you. Sympathetic stimulation, there is a person who is a type A personality, takes tension and he is very anxious all the time, and excessive sympathetic stimulation decreases the Brunner's gland secretion. There is less alkaline mucoid secretion in the small intestine. Can you think of a possible consequence? Let me give you a hint. Why is there alkaline सिक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्टमक से एसिडिक काइम आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन सिक्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं. अगर वो नहीं होंगी या डिक्रीज हो जाएंगी तो थिंक ऑफ अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस एंड कमेंट अंडर दिस वीडियो प्लीज़. हमने बात की थी क्रिप्स ऑफ लिबर्कन और विलाई की. अब वो क्या होते हैं? थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स लाइक दिस. तो अबव these are the villi, or below these are the crypts of Libercan. As you can see in this diagram as well, these are the crypts and this is the villi. So throughout the lining of this villi and crypt of Libercan, you can see different type of the cells. There are goblet cells which are going to secrete mucus, and other these cells are the enterocytes which are lining this. So these goblet cells are going to secrete much of the alkaline mucus. Crypts of Libercan throughout the intestinal layer मौजूद हैं, इनके दरमियान में विलाय मौजूद हैं, एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रेट करेंगे, और एंटेरोसाइट से. एंटेरोसाइट का फंक्शन, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, इज़ डिफरेंट इन द क्रिप्ट्स एंड विलाय. क्रिप्ट्स के अंदर एंटेरोसाइट्स का फंक्शन सिक्रीट करना है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. इन दिस एरिया एंटेरोसाइट्स का रोल सिक्रीटरी है, और विलाय के अंदर इन्हीं एंटेरोसाइट्स का रोल एब्जॉर्प्टिव है. एक और इंटरेस्टिंग थिंग जो
इंटेरोसाइट्स हैं क्रिप्ट्स के और विलाय के, इनकी मैच्योरिटी में भी डिफरेंस है। स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं विलाय के ऊपर, यहाँ पे न्यू एंटेरोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सिक्रेटरी इन नेचर होते हैं। ऊपर जाते जाते विलाय में दे बिकम मैच्योर एंड दे बिकम एब्जॉर्प्टिव। तो इसकी वजह से म्यूकोजल लाइनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो भी कंटिन्यूसली रिपेयर होती रहती है, टर्नओवर होती रहती है। न्यू सेल्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं क्रेप्ट्स में, विलाय की तरफ माइग्रेट करते रहते हैं, और विलाय वाले सेल्स जो हैं दीज आर कंटिन्यूसली बीइंग शेड ऑफ इन द ल्यूमन, और वहाँ पे वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, बाकी अनडाइजेस्टेड रफेज के अंदर फीसिस के अंदर चले जाते हैं। It takes approximately 3 to 5 days that entire mucosal epithelium of the small intestine is replaced. क्रिप्स ऑफ लेबर्कन के अंदर स्टेम सेल्स के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट सेल्स भी हैं, डिफेंसिव पेनेट सेल्स हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, क्रिप्स के अंदर पेनेट सेल्स क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका रोल डिफेंसिव है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, इंक्लूडिंग द लाइसोजाइम एंड द डिफेंसेस। ब्रश बॉर्डर के ऊपर जो एंजाइम्स मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन में, 3 कैटेगरीज के एंजाइम्स मौजूद हैं, एंटेरोपेप्टाइडेजेस, डाइसैकेराइडेजेस एंड लाइपेजेस। जो तीनों मेजर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उनके एंड प्रोडक्ट डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसा कि डाइसैकेराइडेजेस में माल्टेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज और लैक्टेज हैं, ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अमाइनोपेप्टाइडेजेस जो हैं ये पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइपेजेस न्यूट्रल फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एंटेरोपेप्टाइडेजेस हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिवेशन में, जो कि ट्रिप्सिनोजिन पेंक्रियास से आता है। रेस्ट ऑफ द डिटेल यू विल बी सीइंग इन द secretory and the digestion absorption lectures of the small intestine. And this is just a summary of digestion absorption and the role of the brush border enzymes in that. You can have an overview of over here or you can consult the detailed lectures on this topic. Absorption की small intestine में बात करें तो there are certain anatomical and physiological considerations which apt the small intestine for better absorption. कौन कौन सी हैं? एक तो जितना भी small intestinal mucosa है that is thrown into circular folds. इनको folds of Kerckring भी कहा जाता है और ये 3 times surface area increase कर देते हैं small intestine का। फिर हर fold के अंदर there are multiple villi, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, ये एक फोल्ड है और उसके ऊपर विलाए हैं, जिसकी वजह से मज़ीद 20 फोल्ड्स सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, और हर विलाए के ऊपर देर आर मैनी माइक्रो विलाए, जिसकी वजह से मज़ीद 10 फोल्ड सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर एक फ्लैट म्यूकोजा होता वर्सेस ये सर्कुलर फोल्ड्स, विलाए और माइक्रो विलाए हैं, 1000 फोल्ड सरफेस एरिया ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विच हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड मटेरियल। इसके अलावा अगर आप विलाय का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ये काउंटर करंट आपको आर्टेरियल और वीनस सप्लाई नज़र आ रही है, लिम्फेटिक वेसल नज़र आ रही है, विच आर प्रेजेंट इन अप्रॉक्सीमेशन फॉर एन एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। दिस इज़ अ समरी ऑफ कि बहुत सारी सिक्रीशन कुछ हम इंजेस्ट करते हैं और बाकी सारा ये सिक्रीशंस की वजह से पर डे 9500 ml is going to small intestine, और there is approximately 9000 ml of being going to reabsorb. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं the great absorptive capacity of the small intestine, and similarly the large intestine is also going to absorb the rest of it, and there is going to be a small amount of feces in the end. Disorders of small intestine की अगर बात करें तो मेजरली स्पीकिंग 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है, दोज रिलेटेड टू डाइजेशन, दोज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन एंड मोटिलिटी। अब डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स कब हो सकते हैं? क्योंकि सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई एंजाइम्स तो थे नहीं, लेकिन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स से, अगर उन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स में से किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मैल डाइजेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है अगर लैक्टेज की डेफिशिएंसी है। एब्जॉर्प्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स वो हैं जो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में या तो एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि डाइजेशन ही नहीं हुई थी जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इनको मैल एब्जॉर्प्शन के अंदर हम देखेंगे। थर्ड थिंग इज़ डायरिया, जो कि मोटिलिटी रिलेटेड है, एक्सेसिव मोटिलिटी की वजह से होगा। डायरिया मेजरली
कोलन के अंदर इम्पैक्ट करता है, बट ऑल्सो डिस्टल इलियम को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कॉलरा एक एग्जाम्पल है डायरिया की. तो लेट्स हैव अ लुक एट दीज वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस. होता क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज होती है विच इज़ अ ब्रश बॉर्डर एंजाइम डाइसैकेराइड. लैक्टोज विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स मोनोसैकेराइड्स, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट ये पेशेंट लेगा जिसमें लैक्टेज नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा और वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, बहुत वाटर को ड्रॉ कर लेगा इनटू द इंटेस्टिनल ल्यूमेन, और फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल के ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करके फर्मेंटेशन करेंगे और फिर गैसेस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी. अल्टीमेटली द इंटेस्टाइन विल बी फुल ऑफ फ्लूइड एंड गैस दैट विल लीड टू क्रैम्पिंग, पेन एंड डायरिया. एंड अगर ये इन्फेंट्स के अंदर होगा जो कि सोली डिपेंड ही मिल्क के ऊपर कर रहे होते हैं, लैक्टोज को ही टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो दे विल ऑल्सो बी experiencing severe malnutrition. Adults के अंदर it will be more of the osmotic diarrhea and flatulence and pain. malnutrition उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी infants में होगी, और ज़रूरी नहीं है कि this is absent by birth. समटाइम्स इन्फेंट्स के अंदर लैक्टेज नॉर्मल होता है और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता चला जाता है एंड मे अपियर ग्रेजुअली आफ्टर 4 years ऑफ द एज. मैल एब्जॉर्प्शन की बात हमने की, तो उसके अंदर एक प्रोटोटाइप डिजीज़ इज़ सीलिएक डिजीज़. लेट्स हैव अ लुक एट सीलिएक डिजीज़ क्या होती है और उसके बाद हम देखते हैं मैल एब्जॉर्प्शन के अदर टाइप्स क्या हो सकती हैं. तो सीलिएक डिजीज़ इज़ एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इसका दूसरा नाम ग्लूटेन एंटेरोपैथी भी है, क्योंकि ग्लूटेन की वजह से होती है. ग्लूटेन इज़ अ कंपाउंड, अ प्रोटीन प्रेजेंट इन वीट, बार्ले और राय. अब वीट क्योंकि पाकिस्तान का स्टेपल फूड है तो एवरीवन इज़ एक्सपोज टू इट. तो वीट के अंदर ग्लूटेन होता है, और जो ग्लूटेन को ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं जैसे ही वो वीट की, बार्ले की या राय की कोई फूड इनटेक करते हैं, तो देयर इज़ एन एबनॉर्मल टी सेल रिस्पॉन्स विच डैमेजेस द इंटेस्टिनल विलाई. अब इंटेस्टिनल विलाई अगर डैमेज हो जाएंगे तो म्यूकोजा फ्लैटन हो जाएगा, ब्रश बॉर्डर शॉर्टन हो जाएगा. that will lead to decreased surface area available for absorption. So of course there is going to be malabsorption and its consequences ultimately. So this is known as celiac disease or gluten enteropathy. इसको इडियोपैथिक स्प्रू भी कहा जाता है, और इसकी ट्रीटमेंट यही है कि ये फूड्स अवॉइड की जाएं जिसके अंदर ग्लूटेन होता है. तो ग्लूटेन फ्री डाइट, अब तो कैंड फूड और वैसे भी अवेलेबल हो गई हैं ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर दीज पेशेंट्स. सो लेट्स हैव अ लुक मैल एब्जॉर्प्शन और कैसे कैसे हो सकती है. फॉर एग्जांपल इफ़ लार्ज पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ रिमूव, किसी मलिग्नेंसी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से सर्जरी करके अगर लार्ज पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव कर दिया तो ऑफ कोर्स देयर विल बी मैल एब्जॉर्प्शन. एक और कंडीशन है वेयर देयर इज़ एक्सेसिव इंटेस्टिनल ग्रोथ. जब एक्सेसिव इंटेस्टिनल ग्रोथ हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसको SIBO से भी, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ से भी एब्रीविएट किया जाता है. दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हिंडर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. थर्ड कैटेगरी इज स्प्रू. स्प्रू इज़ डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन बाय द म्यूकोजा. जब भी म्यूकोजा का प्रॉब्लम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन होगी तो उसको स्प्रू कहेंगे. दिस कैन बी ट्रॉपिकल और नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू. नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू की एक एग्जांपल सीलिएक डिजीज़ भी है. ट्रॉपिकल स्प्रू जो है दिस इज़ इट प्रेजेंट इन सर्टेन एरियाज, और दिस इज़ probably because of some infection or inflammation of the intestine. कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्दो इसके अंदर पिन पॉइंटेड नहीं है, बट मेजरली इट इज़ थॉट कि किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है, एंड यूजुअली इट इज़ ट्रीटेड बाय द एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट, और उससे फिर ये क्योर भी हो जाता है. जो सीलिएक डिजीज़ है उसको इडियोपैथिक स्प्रू भी कहा जाता है क्योंकि ऑटो इम्यून है और उसकी कोई एज सच नोन रीज़न नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको आप लेबल कर सकें. फोर्थ कैटेगरी ऑफ मैल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर वो है जिसके अंदर डाइजेशन ही इम्पेयर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी. एंजाइम्स, हमें पेंक्रियाटिक एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और बाइल सॉल्ट्स चाहिए होते हैं डाइजेशन के लिए. इन तीनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी फॉर एनी रीज़न लाइक पेंक्रेटाइटिस, कोई गाल स्टोन, पेंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉकेट, लिवर डिजीज़, बाइल प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, एंड मैनी मोर. इन एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से मैल डाइजेशन एंड फिर अल्टीमेटली मैल एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी. अगर मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहले फ़ैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर आते हैं.
the first symptom that patient will present will be excessive fatty stools, जिसको स्टेटोरिया भी कहा जाता है. These are sticky frothy stools. और अगर सिवियर हो जाएंगे तो फिर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी इम्पेयर हो जाती है. इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन के, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, अगर आप देखें तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको एब्जॉर्प्शन के लिए ख़ास तौर पे फैट सोल्युबिलिटी की ज़रूरत है. विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन के आर फैट सोल्युबल विटामिन्स, तो इनको ज़रूरत है उन व्हीकल्स की जो फ़ैट एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि बाइल सॉल्ट्स की ज़रूरत है. तो ख़ास तौर पे इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इन केस ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन. और अल्टीमेटली दे विल बी मैल न्यूट्रिशन. विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ऑस्टियोमलेशिया होगा. विटामिन के नहीं होगा तो इनएडिक्वेट ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगी. विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं होंगे तो मैक्रोसिटिक पर्नीशियस अनीमिया डेवलप हो जाएगा. डायरिया की बात की थी, उसमें से एक प्रोटोटाइप हम देख लेते हैं, कॉलरा. डायरिया में क्या होता है, एक्सेसिव कोलोनिक मोटिलिटी या स्मॉल इलियम की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से देयर इज़ मोर फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स. कॉलरा इसकी एक एग्जांपल है, जिसमें कॉलरा टॉक्सिन क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके, दिस टारगेट्स एट continuous production of cyclic AMP. This is the whole mechanism that I'll show you in the next slide as well. ये cyclic AMP क्या करता है, ये दो चैनल प्रोटीन्स को इम्पेयर करता है. एक तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस रेगुलेटर प्रोटीन, जो कि आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस के रेफरेंस में भी सुनी होगी, इसको कंटिन्यूसली एक्टिवेट कर देता है और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को कंटिन्यूसली ब्लॉक कर देता है. तो अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होता है कि क्लोराइड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. तो सोडियम और क्लोराइड दे स्टे इन द इंटेस्टिनल फ्लूइड ल्यूमन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, क्लोराइड सिक्रीट होता चला जा रहा है. देयर इज़ टू मच सोडियम क्लोराइड, देयर इज़ टू मच वाटर ड्रैग बिहाइंड इट, तो देयर इज़ गोइंग टू बी फ्रीक्वेंट वाटरी डायरिया. अब ये होता किस तरह से है कि कॉलरा का टॉक्सिन आके करता क्या है, बाइंड्स टू GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स ऑन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स. इस रिसेप्टर से अटैच होके ये क्या करते हैं, अल्फा सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन को स्टिमुलेट करते हैं, जो GTPase को इनहिबिट कर देता है. रिजल्ट इज़ एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ साइक्लिक AMP और फिर क्लोराइड सिक्रीशन और ज़्यादा हो जाती है और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाती है. रिजल्ट इज़ एक्सेसिव डायरिया. कॉम्पनसेट हम इसको कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओरल डिहाइड्रेशन करते हैं, ORS देते हैं. ORS के अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है और ग्लूकोज होता है. अब ग्लूकोज कैसे हमें हेल्प करता है कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर तो इम्पेयर हो गया है, लेकिन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इज स्टिल फंक्शनल. तो अगर आप सॉल्ट को इन कॉम्बिनेशन दें विद द ग्लूकोज, तो ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हेल्प्स अस इन रीगेनिंग द फ्लूइड बैलेंस, और रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और ग्लूकोज की इसके थ्रू हो जाएगी, वाटर विल ड्रैग बिहाइंड और डिहाइड्रेशन ओमिट हो जाएगी. अदरवाइज कॉलरा कैन बी really fatal if rehydration is not done properly. So that's all about the overview of the small intestinal functions and its abnormalities. If you have any questions, please feel free to comment. Thank you.